Welcome to Coordinate Geometry part 22. In this part we are going to discuss area of parallelogram. As we know, any figure bounded by four lines is called a quadrilateral. Okay, and in a quadrilateral, if opposite sides are parallel, then it is called a parallelogram. So let us suppose here A, B, C, D is a parallelogram. Then AD must be parallel to BC and AB must be parallel to CD. Opposite side must be parallel. Okay. Let us suppose this side, which is base of the parallelogram, is suppose your AX plus BY plus C equal to 0 is one side of the parallelogram. So what will be this side? This side is parallel to this. So this side can be written as AX plus BY. This will be same, and in place of C there will be a new constant. Suppose C1 equal to 0. This side then can be written in this way. In the previous video we read if two lines are parallel, only they differ by their constant term. Similarly, let us suppose this CD line is A1x B1y plus D equal to 0. Okay, and this CD is parallel to AB. So AB can be written as A1x plus B1y. ये सेम रहेगा. D के जगह पर एक नया कांस्टेंट होगा D1 इक्वल टू 0. In this way we can write equation of AB. Now here equation of all the four sides are there. You have to find area of this parallelogram. Okay. From here draw a perpendicular AM. Suppose this AM is the distance between these two parallel sides. Similarly, what will be distance between these two parallel sides? From here you have to draw a perpendicular on this side, and for that you produce this side, and in this way you can draw perpendicular BN suppose on CD. Distance between these two parallel sides, let us suppose P1, and this is the distance between these two parallel sides, suppose P2. Okay. So what can you write for this area of parallelogram ABCD? Area of parallelogram ABCD can be written as C. ABCD is a parallelogram. If you join A and C, this will gives you diagonal, and diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two triangles of equal area. Means area of triangle ABC and area of triangle ACD will be same. So area of parallelogram ABCD can be written as double of area of triangle ABC. ABC का डबल कर दीजिए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा. ओके, एंड 2 times area of triangle ABC can be written as half into base into height. इसके लिए बेस हो जाएगा ये BC और हाइट हो जाएगा ये P1. Okay. Also, let us suppose theta is this angle. Means theta is the angle between two adjacent sides. This side BC and side AB are called adjacent side, and if theta is the angle between them, then this angle will also be theta. ये लाइन पैरेलल है ना ये ऐसे, और ये इस तरह से ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या होगा? अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. Okay, so in this triangle, since this is 90, BC will be taken as hypotenuse, and for this theta angle this will be perpendicular,
So if you write sin theta, it will be P2. P2 by hypotenuse will be BC. P2 by BC. Okay. So this 2 cancel, and in place of BC you can write P2 by sin theta. So this will gives you P1 into P2 by sin theta. This will gives you area of the parallelogram P1 into P2 by sin theta. Okay. Secondly, what is P1? P1 is perpendicular distance between these two parallel sides. In the previous video, we already discussed how to find distance between two parallel lines. So this P1 can be written as, see in the figure, C minus C1 by root under coefficient of x square प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी1 इक्वल टू 0. इसके बीच का डिस्टेंस c माइनस सी1 मोड में रहेगा, ये ऐसा c माइनस सी1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और उसी तरह से P2 क्या होगा, ये है आपका a1x b1y प्लस d इक्वल टू 0. और ये लाइन है आपका a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0. तो उसके बीच का डिस्टेंस है ये P2. सो P2 कैन बी रिटन एज सिमिलरली मोड साइन d माइनस d1 बाय रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर मीन्स a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर. x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1. सो दिस विल बी योर area of this P1 into P2 into this will continue, ये 1 by sin theta जो है. टेक इट इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ ये sin थीटा का वैल्यू निकाल के हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी sin थीटा. सी, दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज द लाइन ax plus by plus c equal to 0. What will be slope of this line? This line can also be written as y equal to minus a by b, x minus c by b. Can you write? इसको ऐसा लिख सकते हैं. ये हो गया y equal to mx plus c. So slope of the line must be minus a by b. Minus a by b is the slope of this line. Similarly, what will be slope of this line AB? इसका स्लोप हो जाएगा माइनस a1 by b1. This will be slope of this line. Is not it? जैसे इसका स्लोप निकाले ना माइनस a by b, वैसे इस लाइन का स्लोप होगा माइनस a1 by b, a1 by b1. इसको लिखेंगे y इक्वल टू माइनस a1x माइनस d1 और ये b1 से डिवाइड हो जाएगा. So in place of m you will get minus a1 by b. This will be slope of AB and minus a by b is slope of this BC and theta is the angle between them. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m1, इसको लिख सकते हैं m2. तो these are just like m1 and m2 and theta is the angle between them. So what can you write? Tan theta. m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. चलिए इसको m1 लेते हैं. ये हो गया m1 माइनस m2 माइनस a1 बाई b1 माइनस माइनस प्लस. ये हो गया m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 माइनस a बाई b इंटू m2 माइनस a1 बाई b1. In this way you can find tan theta. Let us simplify it. Now this part can be rubbed. ये पार्ट का सारा चीज का यूज हो गया है. अब इसको हम लोग मिटा सकते हैं. ठीक है. तो यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए. तो ये होगा एलसीएम होगा b b1
माइनस ए बी वन प्लस बी ए वन, और यहाँ होगा बी बी वन प्लस ए वन, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ नीचे बी बी वन एलसीएम दैट विल बी कैंसल्ड, ठीक है। और यहाँ होता है प्लस माइनस, इज नॉट इट। तो प्लस माइनस हम लोग यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल का दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल है ना, तो इसको हम लोग 90 से छोटा ले रहे हैं, तो 90 से छोटा लेने से पॉजिटिव लेंगे उसको, इसलिए हम लोग उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। 90 से बड़ा वाला के लिए नेगेटिव होता है, सो वी आर हियर टेकिंग पॉजिटिव एंगल। सो दिस कैन बी रिटर्न एज, इसको आप ऐसे लिख लीजिए मोड साइन के अंदर a1b माइनस ab1 बाई a1 प्लस b1, इज नॉट इट। दिस इज tan थीटा। कैन यू फाइंड साइन थीटा? देखिए ये जैसे एक आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए है ना, ये थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर इज योर a1b माइनस ab1 and what will be base? a1 plus b1. So can you find hypotenuse? hypotenuse निकाल सकते हैं, देखिए तो ये a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b1 स्क्वायर, ठीक है। इसका a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b1 स्क्वायर, इसका जो -2ab होगा ना, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर का रूट ना, तो इसका जो 2ab होगा 2a1 b1 होगा माइनस में, और यहाँ होगा प्लस में 2a1 b1, तो प्लस माइनस कट जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा a। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए। दिस कैन बी रिटर्न एज, देखिए ये दोनों में आप a1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों में आप b1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में वही सेम आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको, इसको फैक्टराइज कीजिएगा, ये दिस विल बी योर हाइपोटेनस। ओके, सो व्हाट विल बी साइन थीटा? साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मीन्स a1b माइनस ab1 बाय रूट अंडर ये चीज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और इंटू a square plus b square. This will be your sin theta. This value we want to substitute here. So what will be? जरा यही देखिए, ये एक साथ लिखिए ऐसा मोड के अंदर c माइनस c1 इंटू डी माइनस d1, ठीक, बाई इसको लिखिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, एक ही रूट के अंदर ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गई 1 बाई साइन थीटा, यह साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई ये चल जाएगा a1b माइनस ab1, ठीक है। ये देखिए ये पार्ट जो है ना आपका कट जाएगा, ठीक। सो क्या मिला जरा देखते हैं। We are getting area of the parallelogram. Area of the parallelogram will come mod c minus c1 into d minus d1
divided by what is this, AB1 minus BA1. This can be written as AB A1 B1. Can you write? इसको पूरा को मोड में लिखे. देखिए ए बी A1 B1, इसको आप जब तोड़ेंगे तो ये होगा ए B1 माइनस A1B. ओके, ए B1 माइनस A1B, ये वाला आएगा ए B1 माइनस A1B. चूंकि ये पूरा को मोड में लिख रहे हैं ना, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेने से A1B माइनस ए B1 आ जाएगा, और मोड है तो प्लस हो जाएगा. इसीलिए तो मोड ले रहे हैं ना, मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू. सो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका ये चीज. इसमें जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका A1B, और ठीक है इसको ब्रैकेट हटाइए ना, A1B प्लस, ठीक है ऐसा A1B. अच्छा ये, अच्छा ठीक है, माइनस कॉमन लिए ना, ठीक है रहने दीजिए. माइनस कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या है, A1B माइनस AB1, ये चीज है ना. इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेने से तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये चीज है ना. इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में, AB माइनस A1 AB A1 B1 इज द means required formula for finding the area of the parallelogram if sides are given. एक पैरेललोग्राम का चारों साइड्स अगर दिया हुआ है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी कैलकुलेटेड एज C माइनस C1 इंटू D माइनस D1 मोड होल डिवाइडेड बाई AB A1 B1 डिटर्मिनेंट, ये पूरा का मोड, या ये मोड को सीधा हटा के एक ही मोड के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, C माइनस C1 इंटू D माइनस D1. ये जो भी आएगा इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे बाय डिटर्मिनेंट AB A1 B1, ये डिटर्मिनेंट है, और ऐसे मोड लगा दीजिए, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू. दिस विल गिव्स यू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. यही है ना. ठीक है, एक बार हम इसको फिर से समझा देते हैं. ये फॉर्मूला तो आप नोट कर लीजिए, इसको एक बार हम फिर से समझा देते हैं, तब इसके ऊपर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तब आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा पूरी. ये बहुत ही आसान है और ये बहुत यूजफुल होता है एग्जाम में. आप उसको डायरेक्ट स्टेप वाइज कीजिएगा, बहुत लेंदी होगा. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में भी बहुत काम का होता है. जरा देखिए, आप समझ लीजिए इसको और एक बार. ऐसे एक पैरेललोग्राम है, ये साइड है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0. इसके पैरेलल है ये, तो पैरेलल लाइन को लिखेंगे AX प्लस BY, ये C के जगह पर एक नया कांस्टेंट C1 होगा इक्वल टू 0. ठीक है, ये साइड मान लेते हैं A1X B1Y प्लस D इक्वल टू 0 है, तो इसी के पैरेलल है ना ये लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे A1X B1Y, ये तो सेम रहेगा. ये D के जगह पर एक नया कांस्टेंट होगा D1 इक्वल टू 0. ये हो गया इसका इक्वेशन, ये हो गया इसका इक्वेशन, ये इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन. अब इसका एरिया के लिए सिंपली C माइनस C1 और इसका D माइनस D1 बाय डिटर्मिनेंट, ये AB और इसका A1 B1, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू. दिस विल गिव्स यू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. सिंपल. क्या करेंगे, C माइनस C1
इंटू डी माइनस डी वन बाई डिटर्मिनेंट, ये दोनों सेम है ना, ए बी लिख देंगे और फिर ये ए वन बी वन लिख देंगे डिटर्मिनेंट में, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे. दिस विल गिव्स यू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. In this way we can find area of a parallelogram if its sides are given. Let us see one problem now. एक एग्जाम्पल आप देखें तब आपको पूरा समझ में आएगा. समझ गए तो ये I hope you people have understood, but let us see one more illustration. एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लीजिए तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा. एक क्वेश्चन लिखिए, बुक से एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन लिखे, सो दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम so that the area of the parallelogram formed by the line lines x plus 3y minus a, x plus 3y minus a equal to 0, 3x minus 2y plus 3a equal to 0, x plus 3y plus 4a equal to 0, and 3x minus 2y plus 7a equal to 0 is 20 by 11a square. Square unit. A square unit. Try to understand the problem. Question is, so that area of the parallelogram formed by the line, 1 2 3 4 लाइन का इक्वेशन दिया है. क्वेश्चन है कि सो दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइन, दिस 4 लाइन इज दिस. ये 4 लाइन से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया इतना होगा. एरिया दिया हुआ है, आपको निकाल के दिखाना है, इतना होगा. अगर बोलता है एरिया निकालना है तो फिर निकालते उतना आता है. तो देखिए, देयर इज अ पैरेललोग्राम, वो साइड्स आर गिवन. एक साइड का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 3y minus a equal to 0. Second is this, so obviously this is not parallel to this. इसके पैरेलल ये नहीं हो सकता है. x plus 3y है, ये साइड होगा 3x minus 2y plus 3a equal to 0, ये होगा. थर्ड है x plus 3y, तो यहाँ x plus 3y है ना, तो जरूर इसके पैरेलल वाला है ये x plus 3y plus 4a, ये है इसके पैरेलल वाला. और है x माइनस 2y, तो जरूर इसके पैरेलल वाला होगा ये 3x माइनस 2y प्लस 7a इक्वल टू 0. इस तरह से ये चारों साइड दिया हुआ है.
आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, सिंपल, ये दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस, देखिए ये माइनस ए है, माइनस इसको लिखे 4a ब्रैकेट, इसका कांस्टेंट का डिफरेंस 3a माइनस ये 7a, समझ गए, बाय डिटर्मिनेंट ए बी A1 B1 होता है, ए बी माने ये 1 3, और सेकेंड रो में होगा ये दूसरा वाला जो लाइन है 3 माइनस 2, ये होगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब तो समझ गए आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये कांस्टेंट माइनस ये कांस्टेंट, चाहे आप 4a माइनस माइनस ए लिखिए या माइनस ए माइनस 4a लिखिए, बात बराबर पड़ेगा, क्योंकि फाइनली हमको इसका मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, आप लिख सकते हैं 4a माइनस माइनस ए या फिर माइनस ए माइनस 4a, एक ही बात है। 3a माइनस 7a लिख सकते हैं, चाहे 7a माइनस 3a लिख सकते हैं, बात एक ही पड़ेगा आपको, 3a माइनस 7a लिख दिए, और नीचे ये इसका 1, इसका ये 3, और सेकेंड रो में ये तो हो गया 1 3, और ये सेकेंड रो में 3 माइनस 2, ये होगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए कितना आसानी से हो गया ये। अब उसमें क्या करते, चारों वर्टिसेस निकालते, परपेंडिकुलर निकालते, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट करते, ट्रायंगल बनाते, ट्रायंगल का एरिया लेते, डबल करते, काफी समय लगता है, ये बेस्ट तरीका है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये माइनस 5a और ये माइनस 4a, 3a माइनस 7a माइनस 4a, माइनस a माइनस 4a माइनस 5a, और ये कितना होगा, इस डिटर्मिनेंट को तोड़िए, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, फिर बीच में माइनस 3 इंटू 3 9, दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। जरा देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 20a स्क्वायर बाई ये कितना हुआ 11 माइनस 11, इसका ऐसा मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू 20a स्क्वायर बाई 11 हो जाएगा, दिस मच स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। So in this way we can find area of a parallelogram if its sides are given। एक क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए और इसी में, ताकि ये टॉपिक पूरा हम खत्म करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वन मोर क्वेश्चन, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड नाउ। एक क्वेश्चन और आप देखिए, find the area of the figure, very important question, find the area of the figure formed by A mod x plus B mod y plus C equal to 0। This is what is your question. This much only question. Note down the question and then let us see what can we do. Question is, find the area of the figure bounded by this A mod x plus B mod y, A mod x plus B mod y plus C equal to 0. Here actually 4 lines are there.
योर फर्स्ट लाइन विल बी ए, लेट अस टेक x इज पॉजिटिव. अगर x पॉजिटिव हो तो फिर मोड x इक्वल टू x होता है. मोड x का डेफिनेशन पढ़े है ना, मोड x विल बी x if x is greater or equal to 0, and mod x will be your minus x if x is less than 0. So here your x may be positive, may be negative. So in case x and y both are positive, mod x will be x, mod y will be y. ये एक लाइन आ जाएगा. इन केस x एंड y बोथ आर नेगेटिव, तो नेगेटिव होने से फिर मोड x इक्वल टू माइनस एक्स हो जाता है. अगर ये नेगेटिव है तो तब तो माइनस माइनस फिर प्लस होगा ना, मोड का मतलब प्लस. तो ये अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस एक्स होता है. इज द डेफिनेशन फॉर मोड x. सो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अगर एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो सकता है कि x पॉजिटिव y नेगेटिव, हो सकता है कि x नेगेटिव y पॉजिटिव. इफ x नेगेटिव तो ये एंड y पॉजिटिव तो ये हो जाएगा. हो सकता है कि x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ये हो सकता है. 4 केसेस में अराइज. तो हियर यू सी इन दिस 4 लाइन, let us write this: ax plus by plus c equal to 0. Okay, ax plus by plus c equal, okay, just a minute. This equation, ये तो हो गया ना, ये वाला जो है ना, ये वाला equation, this one, this can be written as ax प्लस by माइनस सी इक्वल टू 0. इसमें अगर एक माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस ए माइनस हो जाएगा. नहीं क्या? दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, एंड दिस इज सेम एज दिस ax by. So this line will be parallel to this. So if this line is ax plus by plus c equal to 0, this line may be ax plus by minus c equal to 0. Second line is, let us suppose this one, इसको लिख रहे हैं ax माइनस by प्लस c इक्वल टू 0. अब इसमें एक माइनस कॉमन ले लीजिए, ये वाला जो है, इसमें एक माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ax माइनस by और ये माइनस c हो जाएगा. ax माइनस by, here also ax माइनस by. So this line may be written as ax minus by minus c equal to 0. In this way, these are the 4 lines. So these 4 lines are sides of a parallelogram. You have to find the area of the figure formed by this. This formed a parallelogram. You have to find area of this parallelogram. What will be its area? Difference of their constant. ये माइनस सी माइनस ये वाला सी, इसको ब्रैकेट में, फिर इसका ये सी और ये सी है, यहाँ है माइनस सी, फिर माइनस इसका कांस्टेंट सी, ये कांस्टेंट का डिफरेंस का प्रोडक्ट बाई, इसमें क्या है ए बी, डिटर्मिनेंट ए बी, इसमें क्या है ए माइनस बी, इसका मोड. This will be area of the parallelogram और area of the figure formed by this. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए. ये होगा माइनस 2c माइनस 2c, माइनस इंटू माइनस प्लस 4c स्क्वायर, 2c 4c स्क्वायर हो जाएगा. बाई ये कितना होगा a इंटू माइनस बी, माइनस ए बी, फिर माइनस a इंटू बी, ऐसे तोड़ते हैं ना डिटर्मिनेंट को. ये तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 4c स्क्वायर बाई माइनस 2ab. तो मैग्नीट्यूड लेना है तो पॉजिटिव ले लीजिए. 4c स्क्वायर बाई 2ab मीन्स 2 एक 2 कैंसिल कर दीजिए, एक 2 कैंसिल कीजिएगा तो 2c स्क्वायर बाई ए बी.
This will be the required area. Area of the figure formed by this will be this. So in this way we can find area of the figure formed by this. A mod x plus b mod y plus c equal to 0. एक और तरीका है, उसको भी यहाँ देख लीजिए ना, जरा देखिए। ये तरीका तो समझ गए हम लोग, जो अभी सीखे तरीका उसी तरीका से निकाल लिया। देखिए, दिस रिप्रेजेंट्स 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन को रिप्रेजेंट करता है। पहले इस लाइन पर आइए, इसका ग्राफ बनाइए, x 0 कर लीजिए, तो व्हाट विल कम y, x 0 कीजिएगा तो y आएगा माइनस सी बाई बी। x 0 कर लेंगे तो y आएगा माइनस सी बाई, सॉरी फिर से देखिए आप, इसमें x 0 करते हैं तो ये पार्ट 0 हो गया। वैल्यू ऑफ y विल कम माइनस सी बाई बी, मीन्स दिस लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0 माइनस सी बाई बी। x 0 रखने से y का वैल्यू माइनस सी बाई बी हुआ, सो वो लाइन पास करेगा 0 माइनस सी बाई बी से। यहाँ मान लीजिए आपका 0 माइनस सी बाई बी, समझे। इसमें y 0 कर लीजिए, ये पार्ट 0 हो गया, तो व्हाट विल कम x माइनस सी बाई ए, मीन्स इट विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट माइनस सी बाई a, y 0. So your first equation will be in this way. समझे बात। x 0 करके y का वैल्यू निकाल लिए, ये पॉइंट जहां y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। y 0 करने से x का जो वैल्यू आया वहां x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। नाउ कम टू, इसी का है ना ये, इसी को तो ऐसा लिखें, ओके। इसमें x 0 कर लीजिए, व्हाट विल बी y इक्वल टू सी बाई बी। x 0 y सी बाई बी, देखिए गलत ड्रॉ कर दिया ना, 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें गलती रह गया, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। देखिए गलती कैसे हुआ वो भी जरा समझ लीजिए। x 0 कर लिए तो y का वैल्यू क्या होगा, माइनस सी बाई बी। x 0 तो y माइनस सी बाई बी इधर आएगा ना, x 0 y का वैल्यू माइनस सी बाई बी, ऐसा नीचे आएगा। और y 0 जब कर लेंगे तो x होगा माइनस सी बाई ए, तो इधर आएगा, x का वैल्यू होगा माइनस सी बाई ए और y का वैल्यू 0। इस तरह से आएगा पॉइंट आपका। इसको 0 कर लेंगे और x निकालेंगे तो माइनस सी बाई ए, इधर y 0 x का वैल्यू माइनस सी बाई ए। तो इन दिस वे योर लाइन विल बी फर्स्ट लाइन। नाउ कम टू सेकेंड इक्वेशन। इसमें समझे क्या गलती हुआ था, इसको 0 कर लीजिए तो y का वैल्यू होगा c बाई बी, ऐसा आएगा y का वैल्यू c बाई बी जब x होगा 0। ठीक है, x आप 0 कर लिए तो y का वैल्यू आ गया c बाई बी। फिर इसको 0 कर लीजिए तो x का वैल्यू होगा c बाई ए, इधर आएगा, x का वैल्यू होगा c बाई ए जब y 0 होगा। तो इन दिस वे 2 पॉइंट्स विल कम एंड इट कैन बी ड्रॉन इन दिस वे। दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, इस पर आइए, इसको 0 कर लीजिए, व्हाट विल बी y, c बाई माइनस बी, c बाई माइनस बी मतलब यही पॉइंट आएगा आपका। देखिए इसमें x 0 y का वैल्यू होगा c बाई माइनस बी, माना सेम पॉइंट। फिर इसको 0 कर लीजिए आप, y 0, ये 0 हो गया,
So what will be x? C by A. C by A माने A पॉइंट, ये जो लाइन है आपका ना वो ऐसे होगा, ये बात समझ में। और ये है चौथा लाइन, आइए इसमें चलिए इसको 0 कर लीजिए। मीन्स लेट अस टेक x इक्वल टू 0, सो दिस कंप्लीट टर्म इज 0, सो y विल बी माइनस सी बाई माइनस बी, मीन्स c बाई बी। y का वैल्यू होगा c बाई बी जब x का वैल्यू होगा 0, माने यही पॉइंट आएगा। और y को जब 0 लेंगे तो ये 0 हो गया, x का वैल्यू होगा माइनस सी बाई ए, x होगा माइनस सी बाई ए, y 0, माने ये दोनों पॉइंट होगा। आपका जो फोर्थ लाइन है ना ऐसे होगा। इन दिस वे द फिगर विल बी फॉर्म्ड। यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। ये डिस्टेंस कितना होगा? इधर है c बाई बी, इधर है माइनस सी बाई बी, सो व्हाट विल बी डबल 2c बाई बी। और ये लेंथ कितना होगा? 2c बाई ए, इधर है माइनस सी बाई ए, इधर c बाई ए, तो ये पूरा लेंथ मैग्नीट्यूड में 2c बाई ए। ये क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट इज अ रोम्बस। ये रोम्बस बन गया, ये माने पैरेललोग्राम के साथ साथ ये रोम्बस है। सो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। ये रोम्बस बना तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स मीन्स ये लेंथ 2c बाई बी इंटू ये लेंथ 2c बाई ए, तो एक तो 2 कट जाएगा तो वही आएगा 2c स्क्वायर बाई ए बी। दिस विल बी सेम एज दिस। This becomes a rhombus. Here diagonal bisect each other at 90 degree. That's not it. So in this way also you can find the area of the figure formed by this. Okay. यह बहुत तरीका है। ये अब इसमें आप इस ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। What will be area of this triangle? हाफ इंटू बेस, ये लेंथ कितना है? सी बाई ए, इंटू हाइट, हाइट ये है, ये कितना है? सी बाई बी। ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया ऑफ वन ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाई 4, सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस सी बाई ए इंटू हाइट, हाइट तो ये होगा ना सी बाई बी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 2c स्क्वायर बाई ए बी। आप चाहे जैसे कर लीजिए, एरिया विल कम सेम 2c स्क्वायर बाई ए बी। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड एरिया ऑफ दिस फिगर बाउंडेड बाई a mod x plus b mod y plus c equal to 0. So I hope you have understood how to find area of a parallelogram. So in this video this much. The next video we discuss another topic. Thank you for watching.